Good afternoon, or it can be a good evening. Soon there will be a sunset time, but still we have a couple of hours. Well, today I try to speak bit in English because some friends on the Facebook they always comment in English language. So there is a friend called Fase Less. uh, very long time. It has been very long that he is always read my post and says something about in very short language. He write. It is a comment from him, compliment. In fact, your explanation is more than a live video. You are awesome. Well, it is your way of seeing and reading my post. The way you read and the way you understand, it is your personal vision or imaginations. Some people don't like also. They call it maybe I am awful because they have their particular mindset about what is truth and what is God and what is all about love and everything. Well, that is the freedom of human being to see as they want. They are not a fixed idea about anything. Now I wanted to go to the park and answer your questions, but then I was going out and I see it's very windy. Yeah. So very difficult to sit in this, and it's a bit cold also. But there is so much beauty in that park, so many green, full of green and flowers. Lot of trees is now flowering. When I see the trees, there's so many greens, but I can use the word only the green. But I see the shade of green, maybe hundreds of, or can be thousand. We don't have any word. I don't have especially so many words for the green, light green, dark green, and that kind of green, yellow green. So what I see, I cannot explain exactly that all in the words. Words have limitations, but still I try to see things and try to explain as they are. But I think it is impossible to show you the beauty unless you see from your own eyes. There is beauty which prevails all around us, immense beauty. Not only the trees and clouds and rivers and the oceans have beauties, birds, animals, human beings. There are beauties in things also. When we touch something, a cup of tea or glass of water, there is a seeing, smelling, and the touch. So I, when I drink a water or I drink cup of tea, I say I am drinking cup of tea. But drinking from my mouth and touching from my hands, this cup and the warmth of the cup and the fragrance of the tea, this I cannot put into the words. So that is always a limitations in the explanations, but still you like my explanations. So thank you very much, Faceless. And your name is so beautiful. And on the Facebook, you don't show your face. That I think that you have the absolutely, you have catch the right idea about uh, face. Face. At least human beings, we can see that the face is not a permanent thing. Yeah. I have watching my face from the childhood, and always I was thinking, oh, today is what I look in the mirror. Oh, this is me, but that me is the same. The word is the same, but this face is constantly changing, and that is not we which is changing. That is your face, faceless. These words have so much depth in it, and you have not shown your face up to now. One day you should send me your photo in messenger if you don't want to show anybody. So at least I should know how old you are and how you looks. Even though we can never understand what really person is inside
behind this body, mind, and the face and the eyes. Is almost impossible because we cannot see ourselves. When we look into ourselves and try to find out who we are, there is no face. And the mind, when you try to penetrate into the mind also dispel it disappear, like when the light comes in the room, darkness disappears. So when we try to see the mind also slowly dissolve, and there is nothing, only the seeing. Not that I see, but from the eyes there is a particular quality, we call it seeing. Yeah. So that seeing is not we, not I, not you, not they. It is a universal quality, I think, existential quality, which sees from all the eyes. But this is only, we can, this much we can say in the words. So many thanks to your comments. There have been few more comments before, but I never try to answer them in the English because my English also have a limitations. I have learned from the Osho all the English. And my natural language, what I learned from the childhood, is a Hindi language. So that's why even the people ask a question in English or they say something in English, I answer them by Hindi language. That is more easier for me, but sometimes I have to speak English because roti roji. When you live in the foreign countries, you have to speak their language. So here in London, I speak English with the peoples. Whatever I can explain, they are also agree, and it works in this society, in the daily work. It work English, and that's why my English is not a grammatical Cambridge or Oxford English. So when I try to what you call translate my memoirs, जो हमारे क्या बोलते हैं संस्मरण थे, my memoirs, when I was trying to ask somebody to translate into the English, few people have tried and they have sent it back to me, and I have shown to the publisher. The publisher have rejected 4 times because their standard of English of Cambridge or Oxford and the grammatical things and all this kind of we call it which are the English books people read. So then I drop the idea to translate in English. If somebody I find who can translate this my 850 page in English, then I think I will publish in the English those, because that is a most beautiful part of my life which I lived with the Osho since 1970 to 80. After also I was going to the Pune, but there was not a personal meeting one-to-one or going with the group. He was only giving the talks. So thank you very much. And there is a similar question of somebody, Sajjan Singh. I will try to explain or answer in Hindi, but I think it will take a little longer time, but still we have a little time, few minutes more to talk about in Hindi also. So this video will be the Hindi and English together. So स्वामी जी, आपकी बातें सुनते हैं तो अलग ही दुनिया भासित होने लगती है, जैसे आंखों देखी आपने स्मृति में बहुत मोती समेट रखे हैं। आप कहते हैं, आप कहते रहें, हम सुनते रहें। आप चित्र खींच देते हैं, किसी पात्र के बारे में लिखते हुए उसे सम्मुख खड़ा कर देते हैं। वाह जी। ओशो के पास जो जमा थे या उनके इर्द गिर्द आए हुए थे, सचमुच वह भी परम सौभाग्यशाली हैं थे। जब किसी पर ओशो की नज़र पड़ी होगी या नज़र से नज़र मिली होगी, उन पलों की कल्पना मात्र से हृदय में प्रेम सागर हिलोरे लेने लगता है। हम चूक गए। सज्जन सिंह। अभी इसका तो कोई उपाय नहीं है, बहुत कुछ हम भी चूक गए, क्योंकि हम जब ओशो के पास आए थे तो बहुत युवा थे और इतनी समझ तब नहीं थी। लेकिन जहाँ प्रेम होता है वहाँ ये बौद्धिक समझ काम नहीं करती है।
इसीलिए ओशो ने देखा होगा कि भाई ये लड़का, और मेरे जैसे और भी थे, हमारी उम्र के ज़्यादा थे शुरू शुरू में सन्यासी, 18 साल के, 20-22 साल के, 25 साल के। बुजुर्ग तो आते थे तो कम आते थे, और मिलने आते थे तो सन्यास के लिए उनकी तैयारी नहीं होती थी, क्योंकि उस वक्त हमें भगवा वस्त्र और माला पहनने होते थे। तो इतनी जोखिम का काम वृद्ध लोग या जो समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं वो तो उठा नहीं सकते। हम यंग थे, हमारे पास खोने को कुछ था ही नहीं, न प्रतिष्ठा थी, न धन था, न पद था, न कुछ था। ऐसे ही आवारगी थी। तो ऐसे लोग शुरू शुरू में ओशो से जुड़ गए। तो आप शुरू शुरू के सन्यासियों से मिलेंगे तो वो सब हमारे जैसे करीब करीब थे, कि एकदम जुआरी टाइप के। कोई ओशो ने बोला यहाँ जाना है तो वहाँ चल पड़े, ये करना है तो ये करने को बस अंदर से यस यस हाँ 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 ही निकलती थी, कि बस आप जो कहो वो ठीक। हमारी बुद्धि उसमें बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करती थी। खैर, मैं थोड़ा रिवोल्यूशनरी टाइप था, तो मैं इतना समर्पित शिष्य नहीं था जैसे स्वामी चैतन्य कीर्ति हैं या और माँ धर्म ज्योति हैं, और माँ योग लक्ष्मी सबसे बड़ी, माँ योग तरु, ऐसी तो बहुत सारी उनकी शिष्याएं थी, बहुत समर्पित थी अपने। और भी हैं, देहरादून में हैं जो आश्रम चला रही हैं, दिव्य गंधा, माँ अमृत मुक्ति, एक पंजाब में कहाँ हैं शुक्ला माँ। इनको मैं शुरू से देखता रहा हूँ। नाम तो बहुत है, जितने गिनाऊँ उतने कम, पुराने, और उनमें से कई लोग तो विदा भी हो चुके। तो ऐसा है कि उनकी अपनी यात्रा थी, मेरी अपनी यात्रा है। और जैसा आपको लग रहा है कि मेरी बातों में क्या क्या है, वो इतनी तारीफ कर, भाई तारीफ किसको अच्छी नहीं लगती, लेकिन तारीफ ऐसा है कि हम अक्सर जैसे ओशो के प्रति जो भाव उठते हैं तो हम उसको अभिव्यक्त नहीं कर पाते। मैं खुद अपने बात कहता हूँ कि तो हम चुप रह जाते थे, लेकिन हमारे अंदर जब क्रोध उठता है, घृणा उठती है, नफरत उठती है, और न मन के से अवगुण या कहने की नकारात्मकता उठती है, तो हम उसे अभिव्यक्त करते हैं। सामने वालों को उससे चोट भी पहुंचती है, तो हमें पछतावा होता है कि हमने ऐसी बात क्यों कह दी। और विधायकता को अक्सर प्रकट करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं मिलते, और लोग कम से कम शब्दों में विधायक दृष्टि प्रकट करते हैं, अपना दृष्टिकोण प्रकट करते हैं। लेकिन क्या है कि जीवन में दोनों साथ हैं, अच्छा बुरा, भला बुरा, ये हमारे जो विभाजन है ये घुलते मिलते एक दूसरे में। जो व्यक्ति हमें आज अच्छा लग रहा है, कुछ बात उल्टी सीधी कर दे तो दूसरी पल, उसी पल एकदम से वो हमारी दृष्टि में बदल जाता कि ये तो हमने सोचा नहीं था कि ऐसा कहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको मेरी बातों में, मेरी स्मृति में जो आपको नज़र आता है कि जो जिसके बारे में अभी बात करता हूँ उसको सम्मुख खड़ा कर देता हूँ। जैसे हम फिल्म देखते हैं, वाकई में जब मैं लिखता हूँ तो एक तरह की फिल्म चलती होती है मेरे मस्तिष्क में। जैसे हम सिनेमा में बैठे होते हैं ना, तो लिखते वक्त कलम तो हाथ में होती है, लेकिन मस्तिष्क के पर्दे पर जो मैं देख रहा होता हूँ वही मैं कोशिश करता हूँ कि शब्दों में ढाल दूँ। हालांकि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी जी चाहता है कि क्यों ना वैसा का वैसा ही कह दूँ। अब मैं कोई मिठाई का स्वाद ले रहा हूँ तो मिठाई तो आपको नहीं खिला सकता, लेकिन कुछ देख रहा हूँ तो उसकी भनक हमारी भाषा की सीमा होते हुए भी कुछ न कुछ तो आ ही जाता है। इसीलिए तो बुद्ध पुरुष इतना बोलते हैं, कवि इतनी कविताएं करते हैं, चित्रकार इतने चित्र बनाते हैं, मूर्तिकार मूर्ति बनाते हैं। ऑब्जेक्टिवली जो है, जैसा मैं अनुभव करता हूँ वैसा मैं बता तो नहीं सकता, लेकिन ऐसे लोग जो थोड़े कहना चाहिए जिनके पास स्किल है, हुनर है, एक तो जन्मजात हुनर भी होता है कि मैंने कोई कहीं से सीखा नहीं है, सब ओशो के पास बैठे बैठे ही कुछ हवा लग गई उनकी। तो जो सुना है उसका 1% भी अगर मैं बयान कर सकूं तो मैं अपने आप को धन्यभागी समझता हूं। तो सज्जन सिंह जी, आप चूक गए ऐसी बात नहीं है। आपको ओशो के प्रति इतना प्रेम है, उनके शिष्यों के प्रति भी इतना प्रेम है, तो कैसे चूक गए? हाँ, आपने उनको आमने सामने नहीं देखा, नहीं मिल पाए, तो ऐसे तो लाखों करोड़ों लोग हैं जो रहते थे आश्रम के आसपास, जो बम्बई में ऊपर की मंजिल में रहते थे। ओशो तो रहते थे फर्स्ट फ्लोर पे।
तो जिस 26 फ्लोर थे, कितने मंजिल की बिल्डिंग थी, सभी थोड़ी ओशो से मिलने आते थे। कोरेगांव पार्क, पूना कितना बड़ा, मुंबई कितने कितने लोग आते थे मिलने, पड़ोसी कभी नहीं आए। तो आप बड़े भाग्यवान हैं कि आपको ओशो के प्रति उनके शरीर में ना रहते हुए भी इतना प्रेम है कि आप मेरे जैसे लोगों के शब्दों से इतने आह्लादित हो जाते हैं और बड़ी तारीफ कर देते हैं। तो आपकी प्रशंसा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चूकना नहीं है, बस अब आपकी अकेले की यात्रा है, मेरी अपनी यात्रा है। तो जो कुछ भी मिला है उसके प्रति धन्यवाद अहोभाव प्रकट करें। और कहीं जाना नहीं है, बस अपने पास लौटना है। चूक तो तब जाता है क्या व्यक्ति को कहीं जाना होता है तो भी वहाँ नहीं जा पाए, वो तो अतीत की बात है। लेकिन सार सूत्र ओशो का यह है कि अपने पास लौट कर आना है। तो मैं वही बातें करता हूँ घूम फिर के, हाउ टू नो वन सेल्फ, हम अपने आप को कैसे पहचाने। शरीर, मन और भावना के पार जो दृष्टा है, साक्षी है, जो हमारी आंखों से देख रहा है, हमारी ज़बान से बोल रहा है, हमारे कानों से सुन रहा है, सोता उठता जागता हजार कर्म करता है और फिर भी इससे अलिप्त रहता है। तो हम भी कोशिश करते हैं उसी यात्रा पे, आप भी लगे रहिए। जिस दिन आपने अपने को जान लिया तो आप समझेंगे कि नहीं, चुकना कुछ भी नहीं हुआ है। चुके तो वो हैं जिनके अंदर प्यास ही नहीं है, और उनका दोष नहीं है। ऐसा है, सारा जगत ऐसा है कि हर एक के मन में इतनी गहरी प्यास नहीं होती है। यही सब देखते हुए बुद्ध पुरुष सतत कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। कृष्णमूर्ति जीवन भर बोले, बुद्ध जीवन भर बोले, महावीर बोले, ओशो, क्योंकि हजारों नहीं लाखों में भी एक जाग जाए तो बहुत बड़ी बात है। यह करीब करीब असंभव को संभव बनाना है। संसार में इतना दुख है कि लोग मनोरंजन में जीवन भर उलझे रहते हैं, खेल कूद में, इसमें उसमें। सत्य की भनक कहाँ मिलती है? सत्य के नाम पे लोगों ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, एक भिकमंगापन, मज़ारे हैं, दरगाहें हैं। धर्म के नाम पे लोग भिकमंगे बन गए हैं। इधर उधर सर पटकते रहते हैं, कुछ चढ़ाते हैं, कुछ प्रसाद लेके आते हैं और कल्पना करते हैं कि सब एकदम से ठीक हो जाएगा। तो धर्म का धंधा इतना खतरनाक, इतना घातक सिद्ध हुआ है कि अभी तक लड़ाइयाँ मंदिर मस्जिद के नाम पे हो रही है। एक दूसरे पर कब्जा करने की, मालकत करने की मनुष्य में होड़ लगी है। उसके बावजूद आप जैसे, फेसलेस जैसे और भी एक हमारे मित्र हैं चंद्रमणि गुप्ता जी, उन्होंने भी कुछ ऐसे ही पूछा है कि स्वामी जी, आपके शब्द हैं या समुद्र की लहरें, कैसे ओशो सागर में ले जाती हैं, धन्यवाद हमारे, नमन। ये चंद्रमणि गुप्ता हैं। और भी बहुत से मित्र हैं जिनके बड़े विधायक कमेंट आते हैं, टिप्पणी आती है। और नकारात्मक लोग भी हैं जो अपने ढंग से मुझे कुछ सुना देते हैं, खरी खोटी, तो मैं सुन लेता हूँ भाई। निंदक नीर राखिए। तो फेसबुक तो मंच ऐसा है कि सभी वेलकम, सभी को हम वेलकम करते हैं, सभी का स्वागत है। जो जिसके दिल में आए वो कहे। लेकिन इस युग में हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए, जैसा भी लगे। कंपेयर ना करें, तुलना ना करें किसी से, और आपके अंदर आनंद आता है, शांति आती है, ध्यान के प्रति लगन लगी है, तो उसको अभिव्यक्त करना चाहिए। जो हम बांटते हैं वो बढ़ता है, जो हम रोक लेते हैं वो दब जाता है अंदर। फिर सोचते हैं कि हम चूक जाएंगे या चूक गए। तो मैं भी ना हमेशा के यहाँ लिए हूँ यहाँ ना, और भी हमारे कितने साथी चले गए। बस पुराने ज़माने के तो कुछ गिनती के लोग बचे हैं जो ओशो के संपर्क में आए, 1 to 1 जिन उनसे बातचीत की, उनका स्पर्श किया, उनसे सुना सीधा। तो ऐसा है कि बस चलता रहे ये कार्यक्रम, यह सिलसिला। तो मुझे भी कभी थोड़ा बहुत बोलने का मौका मिल जाता है, नहीं तो भाई अपने आप में ही अपने धुन में रहता हूँ मैं। तो सज्जन सिंह जी, फेसलेस और चंद्रमणि गुप्ता जी, आपका सभी का धन्यवाद। हरिओम तत्सत, और फिर मुलाकात होगी। जय हो।